for the day. I'm Sayukta from All About Skin Wellbeing, and I'm sure all of you must be keeping good health. We all know taking good care of our skin is important for more than just the appearance, as the largest organ, our skin, becomes the most essential to our overall health. Thus, it becomes very important to know about fungal infection. Mild fungal infections on our skin may look like a rash, it can be really itchy and annoying. So let's connect today with our skin expert, Dr. Akash Majumdar, live from Raipur to enlighten us on the topic of fungal infection. Dr. Akash Majumdar is a renowned dermatologist and hair transplant surgeon based in Raipur, Chhattisgarh. He's a gold medalist, MBBS, holds an MD in dermatology and a FISHR fellowship in hair transplantation. He is the consultant dermatologist at Dr. Majumdar's MD Advanced Skin and Hair Transplant Center, Shankar Nagar, Raipur, Chhattisgarh, where he specializes in acne, fungal infections, pigmentation, psoriasis, hair loss, laser dermatology, aesthetic procedures, and advanced FUE hair transplantations. Here we go. A very warm welcome to you, Dr. Akash Majumdar. Thank you for the lovely introduction. Pleasure, doctor. Today we are going to talk about a very important topic, fungal infection, and it becomes even more important because right now the climate across India is very hot and humid. Many of us, many of the places are already experiencing monsoon or pre-monsoon breezes, and it's really humid for most of us. सो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम फंगल इन्फेक्शन पर बात करें, उसके प्रिवेंशन पर या ट्रीटमेंट के जो ऑप्शंस हैं उस पर बात करें. टू स्टार्ट विद डॉक्टर, व्हाट इज फंगल इन्फेक्शन, कैसे होता है, वो कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो ज्यादा प्रोन होते हैं फंगल इन्फेक्शंस के लिए? So fungal infections basically स्किन में फंगस का ओवरग्रोथ या स्किन में फंगस का इन्फेक्शन ऐसे एरियाज में जहां पर मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी या हीट ज्यादा ट्रैप होती है, जैसे कि our skin folds like the underarms, the groin area, the area where we wear the belt, okay, in the abdomen. So in females below the breast, in the chest area. So all these areas where we wear tight clothing, where we have a lot of sweating. One more area which I forgot is the feet, where if we wear socks and shoes every day, तो वो एरिया में भी हमेशा स्वेटिंग एंड इस तरह का ह्यूमिडिटी accumulate होता रहता है. That leads to fungal infection. And doctor, why we say that during monsoon or during humidity, there are good enough chances for the fungal infection to grow? Yes, so in monsoons, because the relative humidity is so high that even if we are not doing any kind of physical activity, we sweat a lot. And that creates lot of humidity and moisture around the covered areas. And then those covered areas are constantly in friction also. So heat, friction, moisture, humidity, these are all the uh, grooming grounds or growing grounds for fungus. That's why we have more fungal infection in these seasons. राइट. डॉक्टर, ये भी कहा जाता है कि किसी भी बीमारी से बचना सबसे अच्छा है, इलाज से बेहतर है जी कि जी हम उस बीमारी से बचें. तो आई जी. थिंक इट्स गुड इनफ टाइम टू टॉक अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स. व्हाट कैन वी डू टू सेफगार्ड ourselves from fungal infection? So first of all, we have to notice that जिस जिस जगह पे हमें ज्यादा स्वेटिंग होती है, जब भी हम वापस आते हैं काम से, we should clean those areas. Like we should wash our underarms, we should wash our groins. Okay, we should take a bath when we come back from home. We should take care of the personal hygiene. We should avoid tight fitting clothing in these seasons. We should wear good fabric clothes like cotton clothes. We should avoid tight jeans, polyester clothing. Okay, we should, अगर हमें जूता पहन के ही जाना है every day, so at least after coming home you wash your feet well, or if you can you may wear a open footwear, that is sandals, है ना? So that a lot of air flow is there. When we come back home, try to wear loose fitting clothes so that air passage is there. So अगर हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, especially gym and sports persons, so whenever we come back from the gym or sports, we should take a bath. We should let the area dry so that इस तरह का जो humidity and moisture है वो trap ना हो और fungal infection ना हो. Right.
लेकिन इसके बावजूद भी जब फंगल इन्फेक्शन होता है डॉक्टर, तो जी। आई एम श्योर आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि एक डॉक्टर के पास, एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की बजाय लोग या तो जो दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे, आजकल तो हुँ, हुँ, इन्फ्लुएंसर्स के नुस्खे होते हैं, वो हुँ, आजमाते हैं, कुछ ना कुछ लगाने की कोशिश करते हैं, या फिर अ वेरी कॉमन थिंग इन आवर सोसाइटी टू गो एंड अप्रोच द केमिस्ट शॉप, कि कुछ भी यस। एक दवाई हमें केमिस्ट शॉप से मिलती है, उसका टॉपिकल एप्लीकेशन जिसको हम अप्लाई करते रहते हैं और हमको लगता है कि बस इसी से ठीक हो जाएगा, यही हमारे पास मैजिक क्रीम है। Which I'm sure is not the right way. So, what is the right way? And if we are going for all these home remedies, or दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे, या फिर केमिस्ट शॉप से ओवर द काउंटर टॉपिकल एप्लीकेशन जो हम लेकर आते हैं, वो कुछ काम करती भी है या नुकसान ज्यादा करती है? एज़ यू राइटली पॉइंटेड आउट, अगर हम 10 पेशेंट्स देख रहे हैं फंगल इन्फेक्शन में, तो उसमें मोर देन 7 टू 8 पेशेंट्स पहले किसी न किसी केमिस्ट से कुछ ना कुछ क्रीम खरीद के लगा चुके होते हैं, जिसकी वजह से उनको वो इन्फेक्शन कई महीनों तक, कई सालों तक उनकी बॉडी में बना रहता है, एंड दे कीप ऑन चेंजिंग द क्रीम्स अगेन एंड अगेन, एंड इन बिटवीन वो अपने घरेलू नुस्खे भी करते हैं, है ना? सोडा लगाना, टूथपेस्ट लगाना, तेल लगाना, ऑल दीज थिंग्स कीप ऑन गोइंग, एंड इससे क्या होता है, 2-3 चीज़ें, एक तो उनका इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है, दूसरा उनकी वजह से उनके फैमिली मेंबर्स को भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है, तीसरा हमारे ओवरऑल कम्युनिटी में जो फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट्स का लोड है वो बढ़ जाता है, और पेशेंट के पैसे भी वेस्ट होते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है, एंड स्किन भी ठीक नहीं होती है। सो ये सब ना करते हुए डायरेक्टली अगर एक डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, और अगर किसी सिटी में रहते हैं तो बेटर है स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, अगर नहीं है तो एटलीस्ट अपने आसपास जो भी जनरल प्रैक्टिशनर्स है उनसे मिले, and not to buy any cream which is shown in the media, shown in the advertisement or in any influencer, because ये सारे creams के अंदर steroids होते हैं। Most of our patients, even doctors don't know, दूसरी specialty के कई बार doctors भी ये सब creams लगा लेते हैं। Now you should always look for ingredients like mometasone, clobetasol, इस तरह के ingredients को हमको देखना है। ये सारे steroids होते हैं, ये जब आप लगाएंगे तो आपको immediately आपकी itching से relief मिलेगा, you will be very happy using that। आप उसको लगाते रहेंगे, बट देयर विल कम अ टाइम जब आपके सिम्पटम्स फ्लेयर अप होंगे, एंड देन यू विल फॉल इनटू द ट्रैप कि जैसे ही आप ये क्रीम बंद करेंगे आपके सिम्पटम्स फ्लेयर अप होंगे, आप दोबारा उस क्रीम को लगाएंगे और दोबारा आप साइकिल में फंस जाएंगे। सो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस cycle, and you have to see a doctor or a dermatologist immediately if you have ringworms in those areas। राइट, तो दाँत, खाज, खुजली के निदान के लिए Yes। जो भी ट्यूब्स मार्केट में, मीडिया में, एडवर्टाइज़मेंट्स जिनके आपको दिख रहे हैं, उन पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। नहीं तो एक तो ठीक नहीं होगा, आप ही का वक़्त, आप ही का पैसा, आप ही की एनर्जी और आप ही की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। सबसे अच्छा तरीका है डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर, ये तो बात हुई कि किस तरह से घरेलू नुस्खे या फिर ओवर द काउंटर टॉपिकल एप्लीकेशंस नुकसानदायक हो सकते हैं। एक और चीज़ जो आज हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं फंगल इन्फेक्शन के केसेस में, वो है रेजिस्टेंस, या पहले अगर मान लीजिए जल्दी ठीक हो जाता था दवाइयों से, कम दवाइयों से, या कम पावर की दवाइयों से ठीक हो जाता था, अब वो ज़्यादा वक़्त ले रहा है। रेजिस्टेंट Yes। एक तरह का डेवलप होता जा रहा है। उसकी क्या वजह है? रेजिस्टेंस प्रोफाइल फंगल इन्फेक्शन में इतना हाई है कि जब हम मेडिकल कॉलेज में थे तो हमारे प्रोफेसर्स बताते थे कि उनके ज़माने में फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में 15 दिन या 1 महीना लगता था। बट आज की हुँ। डेट में ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि फंगल इन्फेक्शन हुआ मतलब 3 महीने तो गोली खाना ही खाना है। 3 महीने के बाद देखा जाएगा कि आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हुआ है कि नहीं। सो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हम लोग मार्केट से खरीद के जो सारे क्रीम्स लगाते हैं उसमें कुछ ना कुछ अज़ोल क्रीम होता है, कीटोकोनाज़ोल, ललिकोनाज़ोल। सो ये हुँ। सारे जो क्रीम्स होते हैं इसके साथ कुछ स्टेरॉइड मिक्स्ड रहता है, कोई एक एंटीबायोटिक रहता है, और ये जब पेशेंट लगाते रहते हैं, बिकॉज़ ऑफ द इम्प्रॉपर डोज़, इम्प्रॉपर ड्यूरेशन, इम्प्रॉपर इंग्रीडिएंट्स, जो फंगस होता है वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने का कोई ना कोई मेथड निकाल लेते हैं। ये सारे जो एजेंट्स होते हैं या तो उनके सेल वॉल को डैमेज करके उनको किल करते हैं, या फिर उनकी किसी सेल वॉल के मॉलिक्यूल को बनने से रोकते हैं। तो फंगस को ये समझ में आ जाता है कि ये ड्रग किस तरह से काम करता है, एंड दे फाइंड ए बाईपास to bypass the action of that molecule। Now, when these patients come to us, we cannot prescribe the same creams to them, otherwise वो उन पे काम ही नहीं करता। तो उस टाइम पे बहुत ही कम क्रीम्स बचते हैं जो इन पे काम करते हैं, और फिर उसमें वो अदर ग्रुप के ड्रग्स ही इनको देने पड़ते हैं। और एक और चीज़ जो हम देखते हैं वो है रिकरेंस, बार-बार होना। एक बार ठीक हो गया, Yes। फिर हो रहा है, एक बॉडी पार्ट में था, अब दूसरे बॉडी पार्ट्स में हो रहा है, उसकी क्या वजह है?
तीन चार कारण है। पहला कारण इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट, दूसरा कारण इम्प्रॉपर डोजेज, तीसरा कारण इम्प्रॉपर ड्यूरेशन, चौथा कारण जिस कारण की वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ था वो कारण अभी भी आपकी बॉडी में मेंटेन्ड है, दैट मीन्स ह्यूमिडिटी, स्वेटिंग, इम्प्रॉपर हाइजीन। एंड पांचवा, क्योंकि आपके घर वालों को भी ये इन्फेक्शन होगा तो घर वालों से आपको वो इन्फेक्शन रिकरेंटली हो रहा है। So you have to not only treat the patient but also treat the family members, treat the all the other causes. एंड फंगल इन्फेक्शन में हमको बैठ के प्रॉपर हिस्ट्री लेना पड़ता है कि इनका ऑक्यूपेशन क्या है, जिम जाते हैं क्या, शेयर्ड क्लोथिंग्स कहीं शेयर करते हैं क्या स्विमिंग पूल में या जिम में। उससे हमें पता लगता है कि ये रिकरेंस क्यों हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे करते हैं कि ड्रग सही ले लिया, जो भी हम दवाई देते हैं सही डोज में भी ले लिया, लेकिन एक हफ्ते लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो यही सब रीजंस है रेजिस्टेंस के भी और रिकरेंसेस के भी। बिल्कुल, तो डोसेज पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। हमको लगता है Yes, कि अरे 2 हफ्ते में ठीक हो गया, 1 हफ्ते में ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक एक्चुअली exactly. होता नहीं है और ऐसे में Because nobody रिकरेंस। wants to take medicines for 3 months, ना, that too for a fungal infection. हाँ, हाँ, राइट, That's वही। यही प्रॉब्लम है। राइट, तो यही प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का खामियाजा भी हमें ही उठाना पड़ता है, तो इसलिए प्लीज ऐसा ना करें। सबसे पहले अगर फंगल इन्फेक्शन है, भले ही आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या हुआ है, डोंट एक्सपेरिमेंट, डोंट गूगल अबाउट इट, गो टू द करेक्ट पर्सन विच इज अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर आप छोटी जगह पे है, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं है, तो भी जो जनरल फिजिशियन है, डॉक्टर्स हैं, जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे जरूर मिलें। और उसके अलावा ओवर द काउंटर टॉपिकल एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं लेना है, और जो भी डोसेज आपको डॉक्टर दे रहे हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उससे कंप्लीट करना है। हमारे यहाँ तो एक और बहुत चलन है प्रिस्क्रिप्शन का, क्योंकि मैंने जिक्र किया तो मुझे याद आया, वो है प्रिस्क्रिप्शन पास ऑन करना। मुझे हुआ है तो मेरी फैमिली में अगर किसी को हुआ था या कोई फ्रेंड है, दिल पास ऑन दैट प्रिस्क्रिप्शन टू मी, टेलिंग कि मैं तो डॉक्टर के पास गया था या गई थी, मुझे भी तो फंगल ही इन्फेक्शन हुआ था, so you can राइट, continue the same medicine. So why it is important राइट। to get a individualistic treatment when others are there with their prescriptions to ready to pass on. सो इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बॉडी वेट अलग होगा आपके घर वालों से। Right. आप अगर फीमेल है, इफ यू आर प्रेग्नेंट और प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी इन द कमिंग मंथ्स, वी विल अवॉइड सर्टेन medications, we will avoid medications altogether. Third, we don't know if you are an alcoholic, if you have had any liver injury, क्या आपका लिवर प्रोफाइल ठीक है या नहीं है। सो इसीलिए ये सब चीजें चेक करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट ट्रीटमेंट है कि घर के एक मेंबर को दे दिया तो सारे ही ले रहे हैं। सो Right. इसीलिए इसको इंडिविजुअलाइज करना जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर, एक और बहुत अच्छी चीज़ जो आपने इससे पहले बोली थी, वो है कि अगर आपको हुआ है, तो देयर आर गुड इनफ चांसेस कि आपसे किसी और को हो, आपसे आपके फैमिली मेंबर्स इन्फेक्टेड हो, दैट मीन्स इट्स कंटेजियस। तो ऐसे में स्पेशली अगर किसी फंगल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हम लोग एक क्लोज उसमें रह रहे हैं, भले ही वर्क प्लेस पे हो, फैमिली मेंबर्स हो, जिम हो, तो क्या वो पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? जो इन्फेक्टेड है वो भी रखे, और जो उसके साथ जो लोग रह रहे हैं उनको भी क्या सावधानी जी, बरतनी है, खास तौर पे जी, फैमिली मेंबर्स? ये बहुत जरूरी है एक्चुअली जानना। अगर घर में किसी को भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उनके कपड़े अलग धुलने चाहिए, उनके कपड़े अलग सूखने चाहिए, उनका साबुन अलग हो, उनका टॉवेल अलग हो, कोई भी चीजें शेयर नहीं होनी चाहिए। अगर आप जिम जाते हैं तो प्लीज अवॉइड टचिंग अदर पीपल्स टॉवेल्स। अगर जिम में कॉमन सोप है प्लीज डोंट यूज इट। एंड जिम में जब आप सपोज आप किसी बेंच पे ले डाउन करके आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑलवेज कैरी अ लॉन्ग टॉवेल। टॉवेल को आप उस पे बिछा दीजिए बेंच पे, आफ्टर दैट यूज इट। सो ये सारे प्रिकॉशंस अगर आप रखेंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस या फिर घर वालों को स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। राइट। हॉस्टल्स में खास तौर पे हम देखते हैं, या जो यस, टीनेजर्स या यंग एडल्ट्स हैं, उनमें हम देखते हैं यस, उनमें शेयरिंग बहुत कॉमन हो जाता जी, है। मतलब जी, पिलो कवर से लेके बेडशीट्स तो ठीक है, टॉवल, कपड़े तक शेयर होते हैं। उनको यस। क्या कहना चाहेंगे? सो बिकॉज वहां पर ना सारे ब्रीडिंग ग्राउंड्स रेडीमेड मिल रहे हैं, ओवर क्राउडिंग है, हॉस्टल्स में ह्यूमिडिटी है, लैक ऑफ हाइजीन है स्टूडेंट्स में, स्पेशली बॉयज में। एंड शेयरिंग होती है, क्लोथ्स की शेयरिंग, अब एक दूसरे का बेडशीट ओढ़ लिया, किसी के शर्ट पहन लिया, किसी का जीन्स पहन लिया, सोप एक्सचेंज कर लिए या सेम सोप से नहा लिए। सो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से हॉस्टल में नॉट ओनली फंगल इन्फेक्शन बट इन्फेक्शंस लाइक स्केबीज जो डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत रैम्पेंट है, फंगल इन्फेक्शन, स्केबीज, ये सब इसीलिए बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं हॉस्टल स्टूडेंट्स में।
ओके, बिल्कुल। तो इसलिए शेयरिंग इज नॉट ऑलवेज केयरिंग, तो Not always स्पेशली caring. इस मामले में तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे जरूरी कि अगर फंगल इन्फेक्शन है तो प्लीज उसे ठीक करा लीजिए, उसे प्रॉपरली ट्रीट कराइए, पूरा प्रिस्क्रिप्शन फॉलो कीजिए ताकि किसी दूसरे को ना हो। Doctor, because we are talking about fungal infection, and you also said that if a woman is pregnant or she is planning for, a family or Correct. a lactating mother, तो इन केसेस में अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो किस तरह से एज अ डॉक्टर आप लोग ट्रीट करते हैं? Okay, so first of all, जो भी लेडीज ये लाइव सुन रहे हैं, if you are pregnant or planning for pregnancy, you must know that these drugs might not be very safe for you in the especially in the first and second trimester. इसीलिए कभी भी सेल्फ मेडिकेट ना करें। अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को फंगल इन्फेक्शन होता है, वी ट्राई एज मच एज पॉसिबल टू ट्रीट देम विथ क्रीम्स, लोशंस, and not to start on tablets or capsules. But if the infection is very rampant and very extensive, covering large surface of body surface areas, in those cases we have to start medicines. But we generally don't start any drug in the first trimester. There are certain drugs जो fourth या fifth month से onwards safe माने गए हैं. So we start with those oral medications and then we continue it for a long time, like 2 to 3 months to give complete resolution to the patient, and then we gradually taper it off. Right. And secondly, doctor, suppose a lady who's lactating mother has Mhm. fungal infection on her breast area, underneath the breast Yes. or in the nipple area. Is it still safe to breastfeed? So it is common to see young infants having fungal infection around the mouth because of the mother having fungal infection near their breast or intertriginous areas. So Mhm. if one side is affected, try to feed the baby from other side and start taking treatment as early as possible to because ये in person contact से spread होता है, person to person contact से, and mother and child have very close contact, that Right. too for a prolonged period of time, and the child's immunity is very low when they are neonates, so the infection spreads very easily. Right. So, ladies, if you are pregnant or planning to have a family, or if you are lactating, then be very, very careful. और अगर होता है तो again, please go to a qualified dermatologist and get it treated properly. हम Right. बात कर रहे हैं लगातार फंगल इन्फेक्शन पे डॉक्टर, और इनिशियली आपने कहा कि एक और बहुत कॉमन फंगल इन्फेक्शन का जो एरिया है वो है फीट। और ये होता है बिकॉज Right. इन कॉर्पोरेट Right. culture, whenever we go to office, we're there with our shoes, formal leather shoes, no ventilation, nothing, and for so long, and many of us sweat a lot. तो Right. ऐसे में फीट का जो फंगल इन्फेक्शन है उसको उसको पहले तो प्रिवेंट कैसे करें? कुछ लोगों में तो बहुत कॉमन हो जाता है ये, तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, देन ट्रीट कैसे होता है? So because of the prolonged hours of wearing socks and shoes, there is a lot of accumulation of sweat in the feet, especially in the intertriginous areas between the toes. So हमें राइट। घर आते साथ we should remove the shoes, socks, clean our feet, let them air dry, and buy good fabric socks, and just keep basic precautions like don't जहां पर भी पॉसिबल है आप ओपन फुटवेयर पहन लीजिए। ऑफिसेज में ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं, बट जस्ट टेक केयर ऑफ योर फीट, क्लीन योर फीट प्रॉपर्ली, दैट्स इट। ओके। राइट। now doctor, when a person comes to you with fungal infection, हो सकता है उनको ना पता हो कि ये फंगल इन्फेक्शन है, कुछ है और है, या ये भी हो सकता है जैसा आपने कहा कि आप अपनी ओपीडी में बहुत देखते हैं कि ज्यादातर लोग काफी एक्सपेरिमेंट करके आते हैं, तो डायग्नोसिस करना आसान होता है फंगल इन्फेक्शन के केस में जस्ट बाय क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा, या कोई टेस्ट भी करने पड़ते हैं? फंगल इन्फेक्शन का डायग्नोसिस कैन बी चैलेंजिंग समटाइम्स। या तो वो बहुत इजी है, या तो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट आल्सो बिकॉज पेशेंट्स बहुत कुछ लगा के आते हैं। दे नॉट ओनली अप्लाई मेनी क्रीम्स, दे अप्लाई एसिड्स, है ना। देयर आर सर्टेन बाम्स जो स्किन को जला के एक्सफोलिएट करता है। देयर आर सर्टेन क्रीम्स जो इरिटेंट होते हैं और वो इरिटेट करके स्किन को एक्सफोलिएट करता है, तो उसकी वजह से जो डिजीज है उसका जो पूरा अपीयरेंस है वो चेंज हो जाता है। जब वो पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें सिम्टम्स से ऐसा लगता है कि इनको फंगल इन्फेक्शन था,
मगर जो दिखाई दे रहा है वो वैसा दिखता नहीं है। इन दोज केसेस समटाइम्स आई टेक हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स फ्रॉम गूगल की आपका इन्फेक्शन इस तरह से दिखता था क्या। Sometimes the patients are able to tell that yes, but sometimes they are not able to tell, especially if they have infection in the buttocks area, which they have not seen yet. So that becomes a challenging part. So when it comes to those cases which are difficult to diagnose, we always take help of lab tests in which we scratch the area, collect the scrapes on a glass slide or a paper, send it in the lab and do a KOH stain. And many a times the reports come positive, and if the reports are negative, also sometimes we have to judge clinically whether the patient has infection or not, because not necessary कि हर बार patient का fungal scraping positive आएगा. So we start them on antifungal creams, and if the symptoms improve, then we understand that yes, they have fungal infection. ओके, ग्रॉइन एरिया में भी डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है और कई Yes, बार लोग बहुत लंबे-लंबे वक़्त तक उसको लेकर बात yes. नहीं करते। दे फील हेजिटेंट और एम्बैरेस्ड टू टॉक अबाउट इट। सो एज़ अ डॉक्टर व्हाट्स योर एडवाइस स्पेशली अगर ग्रॉइन एरिया में फंगल इन्फेक्शन है तो? So if you, first of all, the most common area is to get fungal infection in the groin. So there is nothing new. मतलब आपको ऐसा कोई नया infection नहीं है. You should not hesitate to talk to your doctor. It's always easy to meet your doctor, show the lesions, and then start treatment as early as possible. Because आप जितना delay करेंगे वो उतना बढ़ता जाएगा. And then eventually it will spread from your groin area to your thighs to your buttocks area, and that becomes a problem later on. राइट। डॉक्टर अभी तक मोर लेस हमने स्किन रिलेटेड फंगल इन्फेक्शन पर बात की। इसके अलावा नेल पर भी फंगल इन्फेक्शन होता है। तो वो कैसा Right. दिखता है? वो कौन लोग हैं जो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं नेल फंगल इन्फेक्शन के? Right. One of the most I would say neglected areas जहाँ पर हम कई बार चेक करना भूल जाते हैं are the nails. So जैसा आपने पूछा था कि बार-बार क्यों होता है, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि हमेशा हमें पेशेंट का नेल चेक करना है। अगर नेल्स येलो दिख रहे हैं, नेल का ये पार्ट अगर येलो दिख रहा है, नेल अगर नीचे से उठा हुआ दिख रहा है, मतलब नेल और स्किन के बीच में काफ़ी मोटी नेल की परत बन गई है, नेल पीला दिख रहा है, रफ दिख रहा है, दैट मीन्स दे हैव ओनाइकोमाइकोसिस या नेल फंगल इन्फेक्शन। कॉमनली हाथ के नेल्स में, पैर के नेल्स में, कहीं पर भी हो सकता है। एंड many cases these act as reservoirs, ये स्टोर हाउस की तरह काम करते हैं और यहाँ से पेशेंट को लगातार फंगल इन्फेक्शन होता रहता है, जो फिर समय के साथ ठीक नहीं होता है। एंड इनको ट्रीट करना डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि इस पे क्रीम पेनिट्रेट नहीं करता है, because this is a thick keratin structure. So we have to treat it differently, but yes, this is treatable. The results are very good if we start proper treatment. The nail infections usually take a longer time as compared to skin infection. So the fingernails take approximately 3 to 4 months, and the toenail takes around 4 to 6 months to become better. And कौन लोग इनमें ज़्यादा infected होते हैं? All the people who have had chronic infections like for a long time, old people, people with less immunity, uncontrolled diabetes, all these patients are more prone to getting these nail infections. ओके। डॉक्टर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स पूछते हैं वो ये कि अगर मैनिक्योर या पेडिक्योर कराते हैं, तो क्या वहाँ से भी नेल फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं? Uh, Possibility तो है, because if the instruments are not properly cleansed or sterilized, they might transfer the infection to the other patient. So it is possible, yes. Okay. Now moving to another very common fungal infection, the area is scalp. Scalp fungal infection के बारे में भी हमें Yes. थोड़ा बताइए डॉक्टर। So scalp में fungal infection most commonly हम बच्चों में देखते हैं। बच्चों में ये राउंड पैची बॉल्ड एरिया जैसा दिखाई देता है, ऐसा लगेगा कि उस जगह के बाल चले गए हैं। वहां पर ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख सकते हैं, वहां पर ग्रे डॉट्स दिख सकते हैं, कभी कभी वो फूल जाता है, वहां पर से पस भी आने लगता है। सो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, इसीलिए छोटे बच्चे के स्कैल्प में अगर कहीं पर भी आपको राउंड लीजन दिख रहा है, चाहे उसमें स्वेलिंग हो या ना हो, फ्लैट हो, यू शुड ऑलवेज सस्पेक्ट फंगल इन्फेक्शन इज इन दोज चिल्ड्रन। फंगल इन्फेक्शन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बिकॉज 11-12 की एज में आते आते हमारे ऑयल ग्लैंड्स थोड़े से एक्टिवेट होते हैं, हम जैसे प्यूबर्टी हिट करते हैं, आवर स्किन एंड स्कैल्प बिकम्स ऑयली, ऑयल सीबेशियस ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। नाउ दिस सीबम एक्ट्स एज फंगोलाइटिक और है ना माइकोलाइटिक, ये फंगस को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। दैट इज व्हाई adults में it is very rare to see fungal infection on the scalp,
बट इन चिल्ड्रन इट इज वेरी कॉमन टू सी फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्कैल्प बिकॉज उनमें ये सीबम ग्लैंड्स एक्टिवेटेड नहीं होते हैं. You're not audible. Am I audible now, doctor? Yeah. ओके सो डॉक्टर हम कई बार ये कहा जाता है कि अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है और वहां पर आपने तेल लगाया तो Yes. यू एक्चुअली गिविंग इवन बेटर एटमॉस्फेयर टू द फंगस टू ग्रो. क्या Right. स्कैल्प के केस में भी ये होता है? बिकॉज बच्चों में तेल लगाना, नारियल का तेल लगाना, सरसों का तेल लगाना बहुत कॉमन है, तो ऐसा तो नहीं कि हम होम रेमेडी करने जाएं कि इसमें तेल लगा दो स्कैल्प पे बच्चे का तो ठीक हो जाएगा. उल्टा असर तो नहीं होगा? Yes, so this is more right for seborrheic dermatitis, which is again a type of dandruff on the scalp. Dandruff is also basically overgrowth of fungus on the scalp. Okay, so उनका जो फूड होता है वो होता है स्कैल्प का ऑयल. वो स्कैल्प के ऑयल को खा के जिंदा रहते हैं. ऊपर से अगर आपने और ऑयल डाल दिया, इट एड्स लाइक अ फ्यूल टू देयर फूड, तो वो और ज्यादा नंबर्स में बढ़ने लगते हैं. दैट इज व्हाई वी शुड अवॉइड ऑयलिंग अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ या सेबोरिक डर्मेटाइटिस है तो. ओके. इससे पहले हमने एक जगह डॉक्टर आपको सुना, आपने कहा कि वो लोग खास तौर पे बुजुर्ग जिनका इम्यूनिटी इज नॉट दैट गुड, या फिर बहुत छोटे बच्चे, ऑफ कोर्स उनमें ज्यादा रिस्क होता है किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन ग्रो करने Yes. का. ऐसे में इन जनरल अगर हम ये भी कहें लोगों से कि अपनी इम्यूनिटी पर भी वर्क करना जरूरी है, स्पेशली इन दिस एरा वेयर वी ऑल आर सो बिजी एंड आवर लाइफस्टाइल्स आर गोइंग रियली बैड. So, what is your advice on that? How important it is to work our immunity? So, see, immunity, if your immunity is good, it is not only helpful to prevent fungal infection, but it is helpful in every way. So, for improving our immunity, we should always maintain our sleep-wake cycle. That is to sleep at least 8 hours. That is the most important thing. Eat right, eat healthy, eat green leafy vegetables. Your plate should look colorful. Add a lot of protein to your diet because India is largely 50% population is vegetarian. We lack protein in our diet. So add plant proteins to your diet. Non-vegetarians at least eat non-veg. Make up your protein requirement every day and eat seasonal fruits. Meditate if possible. So all these things will add up to your immunity and prevent you from getting these kind of infections which are more common in low immunity people. राइट. हमारे कुछ व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं डॉक्टर कि अगर स्विमिंग पूल जाते हैं तो स्विमिंग पूल से भी फंगल इन्फेक्शन कैच करने के चांसेस होते हैं क्या? सो स्विमिंग पूल के पानी से फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगेन अगर आप वहां पर सेम क्लोथिंग शेयर कर रहे हैं दूसरी पब्लिक के साथ या सेम सोप शेयर कर रहे हैं, देन इट इज पॉसिबल टू गेट फंगल इन्फेक्शन. ओके. मेकअप के बारे में कई लोग पूछ रहे हैं, स्पेशली मेकअप ब्रशेस, उससे भी फंगल इन्फेक्शन कैच करने के चांसेस होते हैं क्या? Yes, not only makeup fungal infection, but also bacterial and viral infections are very common when we use shared brushes. There are females who go to a lipstick store, try some lipstick, and then they get viral infection or warts in their lips. They get viral infection or warts in their cheeks. They get pimples on their cheeks. So never use shared brushes on your face. That is very harmful. राइट. तो मेकअप प्रोडक्ट्स एंड मेकअप एप्लीकेटर्स, ब्रशेस, स्पंज Should not एक्सेट्रा be वो used. भी शेयर नहीं करना है. डॉक्टर, Yes. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मॉनसून में हम देखते हैं वो है डैम्पनेस. घर में Yes. डैम्पनेस होती है, कपड़े हमारे ठीक से नहीं सूखते हैं और कपड़ों में से एक Yes. अजीब सी स्मेल भी आती है. और कई बार अपने अपने पेरेंट्स को यही कहते सुना है कि अच्छे से आयरन करके कपड़े पहनो, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा. तो इज दिस ट्रू? मतलब ये जो कपड़े ठीक से सूखते नहीं है वॉशिंग मशीन के ड्रायर में भी, इनसे भी क्या हमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है? That is very true. So not only your clothes, but you should always iron press your socks as well, because they might trap moisture because they are thick. They are made up of woolen material sometimes, and if you press your clothes well, it will evaporate the retaining moisture and it will make it completely dry, so that moisture and then again fungal infection होने के chances कम हो जाते हैं. That's true. ओके. तो कपड़े भी अच्छे से ड्राई होने चाहिए और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो उनको आयरन करना बहुत ज़रूरी है. डॉक्टर, ऐसे में
जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि स्पेशली जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपने बताया कि कौन-कौन से टिप्स उनके लिए ज़रूरी हैं। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया था कि कपड़े अलग-अलग धुलने चाहिए। जो हुँ। इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके कपड़े अलग धुलने चाहिए, वरना फैमिली में इन जनरल इकट्ठे सबके कपड़े धुलते हैं। ऐसे में यस। क्या कोई स्पेशल तरीका है खास तौर पे उनके लिए जो इन्फेक्टेड हैं फंगल इन्फेक्शन से? क्या गर्म पानी से, बॉइलिंग वाटर में कपड़ों को डाल के धोना चाहिए? इस तरह से भी कुछ, मतलब वो कपड़ों में भी क्या अवशेष रह सकते हैं कि बाद में अगर ठीक से वो कपड़े नहीं धुले हैं, तो फिर उनसे हो जाए फंगल इन्फेक्शन? अगर उनके कपड़े प्रॉपर्ली वॉश हो रहे हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि उसमें और कुछ फंगल रेसिड्यू रह जाएगा। यू कैन हुँ, ऑलवेज़ यूज़ ल्यूकवार्म वाटर या अगर आपके वॉशिंग मशीन में वार्म वाटर वाला ऑप्शन है, वो यूज़ कर सकते हैं। ड्राइंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यू शुड ट्राई टू मेक देम ड्राई अंडर द सन। सो द यूवी लाइट नेचुरली एक्ट्स एज़ एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल एंड आपका पूरा मॉइस्चर भी वो इवेपोरेट हो जाएगा एंड इट विल क्लेंज़ योर क्लोथ्स बेटर। राइट। डॉक्टर, एक तरह से अब इस पूरे सेशन के कंक्लूडिंग पार्ट में हम लोग हैं, और जो सवाल वाइंड अप करने से पहले मैं पूछना चाहती हूँ, वो भी 2 पार्ट्स में पूछना चाहती हूँ। इन जनरल फंगल इन्फेक्शन को लेकर क्या आपका मैसेज होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? या फिर अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि इस पे डिस्कशन नहीं हुआ है, वो दूसरा, इस मौसम को ध्यान में रखते हुए फंगल इन्फेक्शन पर कोई खास टिप अगर आप देना चाहें तो? देखिए, आप अगर किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को पूछेंगे ना, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं पेशेंट्स को देख के कि जो लोग लंबे समय तक ये जो एडवर्टाइज्ड क्रीम्स होते हैं, ये लगा के आते हैं और स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम्स लगा के आते हैं। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि अगर आपको कभी भी ग्रॉइन एरिया में, पर्सल एरिया में इचिंग हो रही है एंड आपको लगता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, प्लीज़ डोंट बाय एनी क्रीम्स फ्रॉम फार्मेसी। डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि ये ना जो स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम्स होती हैं, ये सिर्फ़ आपके इन्फेक्शन को बढ़ाते नहीं हैं। ये मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे जिनके थाइज़ में स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं बिकॉज़ ऑफ लॉन्ग टर्म यूसेज ऑफ स्टेरॉइड्स एंड वो स्ट्रेच मार्क्स परमानेंट हो जाते हैं, है ना? सो इट विल नॉट लुक गुड इफ यू वांट टू वियर शॉर्ट्स लेटर ऑन, यू वोंट बी एबल टू वियर। आपका स्किन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, आपका इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएँगे, आप बहुत लंबे समय तक आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड रहेगी। So it's always good to talk to a dermatologist and start medicines. It is very easy to treat, but you make it very difficult to treat for yourself. And दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? इस मौसम को ध्यान में रखते हुए इस फंगल मौसम को। इन्फेक्शन को लेकर सो सी, टिप्स। ये मौसम जो है ये फंगल इन्फेक्शन के लिए सबसे अच्छा मौसम है बिकॉज़ अब हर जगह ह्यूमिडिटी होने वाली है। इनफैक्ट ये 35-38 डिग्रीज़ में भी हम जब बाहर खड़े होते हैं तो वी स्टार्ट स्वेटिंग एंड वी हम पूरे गीले हो जाते हैं। सो ऐसे में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू, जैसे आज मैंने ये लिनेन शर्ट पहना है, ट्राई टू वियर कॉटन, लिनेन, ऐसे मटेरियल्स जो स्वेट को कम ट्रैप करते हैं, जो ब्रीदेबल रहते हैं, एयरी होते हैं। जैसा आपने बोला प्रेस करके पहनना चाहिए कपड़ों को, धूप में सुखा के पहनना चाहिए। अब शायद धूप नहीं मिलेगी हमको अगले 2-3 महीने, तो एटलीस्ट प्रेस कर लीजिए कपड़ों को एंड घर में आने के बाद वियर लूज़ फिटिंग क्लोथ्स, लेट द एयर पास एंड दैट्स इट। इफ अगर इतना भी कर लिया तो बहुत है। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि जब किसी भी तरह का हमें इन्फेक्शन या एलर्जी होती है स्किन पर, स्किन को लेकर हम थोड़े लीनिएंट भी होते हैं। हम बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, हुँ, हमको बस ये यस। फ़िक्र होती है कि हमारा चेहरा ठीक दिखना चाहिए। बाकी के स्किन पर शायद बहुत ज़्यादा हमको लगता है ये तो ठीक हो जाएगा, कोई कुछ लगा लेंगे ठीक हो जाएगा, एक आध दवाई खा लेंगे हुँ, ठीक हो जाएगा। और सिर्फ़ इसी एक मानसिकता के चलते हम सालों-साल बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एक टॉपिकल एप्लीकेशन, एक ट्यूब, एक ऑइंटमेंट लगाते रहते हैं केमिस्ट शॉप से लेकर किसी के कहने पर या केमिस्ट के कहने पर, और हम इस मायाजाल में और ज़्यादा उलझते जाते हैं। वो जो विशियस सर्कल है वो कभी खत्म नहीं हुँ, होता, क्योंकि हमसे हमारी फैमिली मेंबर्स को, दूसरे लोगों को ये फैलता जाता है। हमारा ठीक होगा फिर उनसे हमें मिलता है, और ये लगातार यही सिलसिला चलता रहता है। इसमें हम अपने साथ-साथ अपनी कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, क्योंकि धीरे-धीरे यही जो मेंटालिटी है, ये रेजिस्टेंस या म्यूटेशन, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी कर देती है। इसका बहुत आसान और बहुत सस्ता उपाय यही है कि अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाइए और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लीजिए। सिर्फ इतना कीजिएगा तो आपका वक्त, आपका पैसा, आपकी हेल्थ
और वो जो कम्युनिटी एक हम प्रॉब्लम डेवलप कर सकते हैं, उससे हम अपने आप को और अपने आने वाले जनरेशन्स को भी बचा सकते हैं। तो बस करना इतना है कि डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है और ट्रीटमेंट को पूरा करना है। और प्रिवेंटिव मेजर्स तो सबके लिए है और हमेशा के लिए है, इनको तो मानना ही है। So thank you so very much, Dr. Akash Mojumdar. It was wonderful talking to you. Thank you for making the whole subject so simple, easy to understand. और आपने बहुत अच्छे से, जैसे टीचर्स हमें स्कूल में पढ़ाते हैं ना, ABCD, point 1, point 2, point 3, point 4, उस तरह से आपने पूरे सब्जेक्ट को बहुत आसानी से हमें समझाया. Thank you so very much for making this Thank such you an for informative inviting me, session. and I hope इस talk से patients को फायदा मिलेगा. And you summed up the topic really well in the end, focusing on कि इससे हमारे community को कैसे नुकसान हो रहा है. That is a very important message जो हमारे audience को जाना चाहिए था. And thank you for Thank inviting you. me. I hope ये session was good. डेफिनेटली डॉक्टर, थैंक यू सो वेरी मच। आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो पूरा पूरा फायदा एडवाइस का जरूर लेंगे। सो थैंक यू डॉक्टर वंस अगेन, एंड व्यूअर्स थैंक यू फॉर एक्सीलेंट पार्टिसिपेशन। फॉर मोर information and updates on skin health and care, stay connected on our FB page all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter and Instagram. Thank you and have a great day ahead. Goodbye. Thank you.